Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Now, we will talk about today the concentration cell with transparent concentration cell with transparent. Okay, I already have told you with and without what is the difference. I'll just let you know. When we talk about the with transparent means there should be a liquid junction potential. There should be a participations of the two different liquid in the system. And in this particular cell also there are two type of the cell. One is the concentration cell with the electrode reversible to cation. That means the electrode is reversible to cation. So concentration cell with the electrode reversible to cation. That means reaction where the cell reaction involved is reversible to cation. For example, let me talk about the electrode, hydrogen electrode. Now ICL activity 1 and the dotted line. These are the semi-permeable membrane I am talking about. ICL activity 2 and the now same electrode has been used. This is also hydrogen electrode, right hand side. This is also left hand side hydrogen electrode, but they are different in the concentration of the hydrogen ion. Okay, hydrogen ion. So you can also see this kind of reaction in a different way. Let me just draw you for your understanding. This is something like this. Now you have platinum wares, hydrogen, and here is a semi-permeable membrane. Okay, the same way which you can represent the same thing, it is written there. मैंने जो ऊपर लिखा है वही चीज है, मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं और कुछ नहीं है. ठीक है, यू वांट टू सी लाइक दिस, यहाँ पे बना लो. ठीक है, ऊपर ये जो है ये लाइन है, इसको वो मत करना. सुपर राइट, इसको जो है इसको एक लाइन ही बनाना. ये गलती से मेरा सरफेस रह गया है. So here is a solution which is hydrochloric acid activity 2, hydrochloric acid activity 1. Okay, so this is what the representation of the concentration cell with the transport or transparent. Now because of this junction, because the activity 1 and activity 2 are different from one another, so therefore you can expect that there are some kind of mixing. So because of concentration difference in the system, concentration gradients are there, liquid junction potential is expected in this particular cell. Now how do we calculate liquid junction potential? We'll also talk about that. Now once this cells is connected, then what will be happen in the system? Now what will be the direction of the electron flow from the लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड? इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है कहाँ से कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट में जाएंगे.
सो सबसे पहले एक तो पॉइंट 1 जो नोट करना है वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्यों है? लेफ्ट टू राइट क्यों है? बिकॉज लेफ्ट जो है वो एनोड है, राइट जो है आपका कैथोड है। ठीक है, वही है। एंड currents are carried by the ions. The current is carried by ions. Ions in the electrolytic solution. Electrolytic solution. जब आपका सॉल्यूशन में जो करेंट मोबिलिटी की बात आएगा तो एक तो करेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है यहाँ से यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और करेंट जो है इधर आएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, करेंट का मूव। तो करेंट जो है कैरी जो करेंगे वो आपका आयंस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, नाउ आयन जो मूव करेंगे, एनायन जो है कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कैटायन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बिकॉज आयन जो है आयन कैरिंग द इलेक्ट्रॉन्स द करेंट। सो नेगेटिव चार्ज जो है एनायन जो है, जैसे इस केस में क्लोरीन है, क्लोरीन जो है मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। सो क्लोरीन यहाँ पे हमारा ये जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ये जो है ये नेगेटिव होंगे, ये आपको पॉजिटिव होगा। ये कैथोड है, इधर साइड आपका कैथोड है, इधर साइड आपका एनोड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, देयर इज अ कैटायन। कैटायन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो है राइट लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे सॉल्यूशन के अंदर जब करेंट पास करेंगे तो। ठीक है, उसका भी एक पॉइंट आप लिख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। नंबर 1, the anions move from right to left, while cation move from the left to right. इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कैटायन को आपको पॉजिटिव चार्ज है जो राइट हैंड साइड
हेलो, हेलो, नाउ कैन यू हियर मी? ओके ओके, थैंक यू, आई एम सॉरी, पता नहीं ये कैसे हो गया इसका, जो है। नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? हेलो, हेलो सर। सर आप म्यूट हुए हुए हो। हेलो सर। सर आप अनम्यूट हो, हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। Yes, can you hear me? हाँ हाँ जी, यस सर। ओके ओके ओके, दैट इज व्हाई आई एम लिटिल कंफ्यूज, क्योंकि आप लोग सुन पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इमीडिएटली आप लोग बताइए। अभी नाउ यू कैन क्लियर यस लिसन टू यस मी? सर। ओके, मैं यस। पूरा रिपीट करूंगा इसको, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको जो है पूरा रिपीट करके बताता हूं आपको शुरू से। राइट, देखो मैंने कंसिडरेशन सेल विथ ट्रांसपेरेंस लिया है। ट्रांसपेरेंस का मतलब ये है कि आपका सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। मीन्स का मतलब कहीं ना कहीं दो सॉल्यूशन के बीच में ज्वाइनिंग है। दो सॉल्यूशन कौन सा?
सिमिलर हो सकता है, अलग भी हो सकता है। नाउ ज्यादातर केस में क्या होता है, सिमिलर सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन का। तो मैंने क्या लिया है, जो कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू कैटायन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड जो है जो कैटायन के ऊपर डिपेंडेंट हो, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का मैंने 2 लिया है, बट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दोनों सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग करना है, तो डिफरेंस होना है। तो मैंने एक है एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 लिया है। जब दोनों को हमने इलेक्ट्रोड का सेल बनाया, ऊपर जो लिखा है वही मैंने ग्राफिकली लिखा है नीचे में। तो यहाँ पे आपका दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, बट दोनों की इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अलग है। एक है एक्टिविटी 1 और एक है एक्टिविटी 2, A2। ओके, जब दोनों मिक्स करके कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। कहाँ से करेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में जो चेंजेस हुआ है उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस भी होंगे। इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस जो है उसको हम कहते हैं माइग्रेशन ऑफ द आयन। ठीक है, वो भी मैं अब धीरे धीरे आपको बताऊंगा। पहले तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है। इलेक्ट्रॉन चेंजेस कहाँ से है, लेफ्ट टू राइट होगा। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट की चेंजेस होंगे तो कहीं ना कहीं करेंट माइग्रेशन होगा, क्योंकि करेंट जो है वो कैरी करता है आयन। तो आयन जब कैरी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक साइड से दूसरे साइड में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जाएंगे। तो इस सिस्टम के अंदर नेगेटिव आयन जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, और जो कैटायंस हैं वो आपका लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे। ऐसा क्यों, कारण ये है कि ये जो कैटायन है, ये कैटायन पॉजिटिव जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये रिडक्शन करने के लिए ये कैटायन की तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैटायन की तरफ ही आ रहा है, सॉरी कैथोड की तरफ आ रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, सो दैट रिडक्शन हो जाए। ठीक है, और क्लोरीन आयन जो है वो राइट से लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाए। राइट, सो डायरेक्शन जो है उसमें कैटायन क्यों लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो कैथोड की तरफ जा रहा है। और एनायन जो है वो राइट से लेफ्ट में क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहा है रिडक्शन करवाने के लिए, सॉरी ऑक्सीडेशन कराने के लिए। ठीक है, ना उसके साथ साथ क्या होगा, कितनी आयंस मूव करेंगे, कितनी आयन मूव करेंगे वो किस में डिपेंड करेगा, ट्रांसपोर्ट नंबर में डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने लिखा है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड टी नेगेटिव आर द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एनायन। मान लो टी पॉजिटिव जो है कैटायन की ट्रांसपोर्ट नंबर है, टी नेगेटिव जो है एनायन की ट्रांसपोर्ट नंबर है। ठीक है, तब क्या होगा, देन दी टी पॉजिटिव मोल ऑफ द कैटायन move or migrates from left to right ठीक है, लेफ्ट टू राइट थ्रू द लिक्विड जंक्शन। मतलब आप जब माइग्रेट करेंगे तो ये पार करके जाएगा, ये जो वर्टिकल लाइन हमने जो डॉटेड लाइन खींचा है इसको हम लिक्विड जंक्शन कहते हैं। इस जंक्शन को पार करके जाएगा। ठीक है, राइट, ये मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका इसमें लिख सकते हैं टी पॉजिटिव मोल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और टी नेगेटिव में टी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ, ठीक है, टी नेगेटिव ऑफ क्लोरीन विल ऑल्सो मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो सिमिलरली the T negative mole of anion migrates from
right to left, right to left. ठीक है. Now when 1 Faraday of electricity is withdrawn from the cell. ठीक है. जब 1 फराडेज विड्रॉ करेंगे सिस्टम के अंदर से, तभी ये माइग्रेशन शुरू होगा. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि therefore there are two type of क्या क्या चेंजेस होगा? एक तो इलेक्ट्रोड की चेंजेस होंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट की चेंजेस होगा. नंबर 1 जो है इसको कहते हैं हम द इलेक्ट्रोड चेंजेस. ठीक है. दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस. ठीक है. चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ठीक है. ये 2 चेंजेस सिस्टम के अंदर होगा ना. उसमें क्या क्या चेंजेस हैं हम पता लगा सकते हैं. नंबर 1 जो हमने क्या कहा है, चेंज एट इलेक्ट्रोड. नाउ चेंज एट इलेक्ट्रोड में क्या होगा? चेंज इन इलेक्ट्रोड मतलब क्या है? एनोड एंड कैथोड. somebody is giving scroll down. ठीक है. कुछ क्वेरीज होंगे, मैं आपको इमीडिएटली आपको कुछ मिसकंफ्यूजन है तो बताइए. निष्ठा, प्रिया. ठीक है. इफ एनीबडी हैज immediate having a problem, then let me know through chat. Scroll down. Yes, Prabhat, you can unmute and you can tell me. Yes, Prabhat. Sir, there is a doubt, sir. Why chlorine is moving from right to left? Why? Why chlorine is moving from right to left? Because okay, the chlorine is moving from right to left because at the left hand side there is a oxidation reactions takes place. So when you look at the system, the oxidation reaction will be taken place at the anode side. So chlorine can do the oxidation reaction at that point of time. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है, तो आप कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी. गेटिंग माय पॉइंट? सो जो क्लोरीन जो है वो आपके एनोड की तरफ जाएंगे सो दैट इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन. ओके सर, ओके, थैंक यू. नाउ लेट मी शो यू एट एनोड में क्या हो रहा है एंड कैथोड में क्या हो रहा है. ठीक है. एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, राइट. नाउ ऑक्सीडेशन हम किस रेफरेंस में दे सकता है? ऑक्सीडेशन हम क्लोरीन की रेफरेंस में भी दे सकता है, बट ये जो इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल टू कैटायन है, तो हम उसको हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में देखता है. सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 1 एटमॉस्फेयर is converting into hydrogen of left hand side में क्या है? A1 plus electron. So this electrode is reversible to cation, क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्शंस हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड में होगा. इसीलिए आपको क्लोरीन ऑक्सीडेशन यहाँ पे नजर नहीं आएगा बिकॉज इज रिवर्सिबल टू कैटायन. ठीक है. इलेक्ट्रोड में एक्चुअली मूवमेंट जो है, क्लोरीन ऑलवेज गो देयर एंड क्लोरीन गैस कैन बी फॉर्म देयर ओनली. ठीक है. बट द पॉइंट हियर इज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एट इलेक्ट्रोड लेवल. इलेक्ट्रोड लेवल में क्या होगा
कैथोड साइड में क्या होंगे, कैथोड साइड में आपका हाइड्रोजन जनरेशन होंगे मोर और मोर, क्योंकि क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन नेगेटिव जो है वो आपका राइट हैंड से लेफ्ट में आ रहा है, सो मोर ऑफ द मोर हाइड्रोजन आयन हैज टू बी जनरेटेड at the anode side also. Okay, so therefore that so that the balancing of the cation and balancing of anion can be there. Okay, so यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जनरेशन हो रहे हैं, और उसके बाद कैथोड में क्या होगा, कैथोड में हो रहा है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 2, क्योंकि राइट हैंड साइड में होगा, इलेक्ट्रॉन लेंगे and it converted into half of hydrogen 1 atmosphere. Okay, so now this is the change at the electrode level में जो हो सकता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, वही चीज इसमें नजर आएंगे. सो इलेक्ट्रोड की चेंजेस जो है वो ये है. सेकेंड जो है वो क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट. चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट जो है इसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ द आयन भी बोलते हैं. चेंज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे माइग्रेशन ऑफ द आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन जो है वो मिक्स है, दोनों सॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तभी मिक्स होगा. सो नंबर 1 जो चेंजेस होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयन एट A1 जो है वो कहां पे मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन A2 की तरफ मूव करेगा, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट में, ठीक है. सिमिलरली आपके इसकी ऑपोजिट में क्या होगा, T नेगेटिव क्लोरीन आयन A2, मतलब राइट से लेफ्ट में T क्लोरीन एक्टिविटी 1 में मूव करेंगे, ठीक है. सो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट चेंज के अंदर माइग्रेशन ऑफ आयन में, क्योंकि वो करेंट मूव करेंगे, करेंट आपको कैरी करके जाएगा, तो इस तरह का ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे. क्लियर. सो नाउ ये जो दोनों चेंजेस हैं, ओवरऑल चेंजेस जो हैं वो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट चेंज एंड दी इलेक्ट्रोड चेंज. अब टोटल चेंजेस क्या होगा, टोटल चेंजेस विल बी द एडिशन ऑफ दिस टू, दोनों ऐड करेंगे तो टोटल चेंजेस आएगा. सो आपको टोटल चेंजेस निकालना है, सो हमने एडिशन करेंगे ऑन एडिंग, ठीक है, ऑन एडिंग ऑल द चेंजेस, जितने भी चेंजेस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में जो चेंजेस हुए हैं, ऑल चेंजेस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में, विथ कैंसिलेशन ऑफ कॉमन टर्म को कैंसिल करो, ठीक है. इसका मतलब कॉमन टर्म में क्या है, कॉमन टर्म में हाइड्रोजन गैस ही कॉमन टर्म है, इलेक्ट्रॉन का कॉमन टर्म है, ठीक है, बाकी तो सब अलग अलग है. सो हमारे पास जो आएंगे वो क्या आएगा, ठीक है, वो लिखते हैं. हमारे पास जो आएगा सबसे पहले हाइड्रोजन A2 आएंगे प्लस T पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 1 आएंगे, T नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 2, और वो आपका राइट हैंड साइड में क्या आएगा, हाइड्रोजन एक्टिविटी 1 प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्टिविटी 2 प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द क्लोरीन एक्टिविटी 1 आएंगे. अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 मिक्स है, तो दोनों को अलग अलग साइड में लिखो. जैसे आपका यहाँ पे 11 साइड में क्या है, एक्टिविटी 1 का एक पॉइंट है, एक जगह पे एक्टिविटी 1 है, दोनों एक्टिविटी 2 है, और राइट हैंड साइड में 2 जो है एक्टिविटी 1 का है, तो आप इसको लेफ्ट साइड में ला दो एक्टिविटी 2 को, और एक्टिविटी 1 को राइट हैंड में आप डाल सकते हैं, तो सो दैट यू कैन हैव अ कॉमन
इक्वेशन. सो हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 2 माइनस, इसको लेफ्ट में लाना है तो माइनस टी पॉजिटिव हाइड्रोजन एक्टिविटी 2. ठीक है, ये माइनस कर दिया क्योंकि मैंने राइट से लेफ्ट में डाल दिया है. प्लस टी नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 2. इसका मतलब सारे के सारे आप एक्टिविटी पॉजिटिव एक्टिविटी 2 का हो गया. इधर साइड में क्या होगा, एक्टिविटी 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट से राइट में आपने लाना है, हाइड्रोजन एक्टिविटी 1 प्लस टी नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 1. ठीक है, अब सब कॉमन हो गया. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस टी पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कॉमन ले लिया है, एक्टिविटी 2, ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 2. सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी हो सकता है 1 माइनस टी पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 1 टी नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 1. ठीक है, अब आपको पता है सिंस द एक्टिविटी टी प्लस टी नेगेटिव इज 1, so T नेगेटिव इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी पॉजिटिव. ये होगा कि नहीं होगा? तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले रिएक्शन में ये आपका T नेगेटिव लिख सकते हैं, T नेगेटिव हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 2 T नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 2, यहां से फिर T माइनस हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 1 T नेगेटिव क्लोरीन आयन एक्टिविटी 1. राइट. सो नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ इस पर्टिकुलर स्पेसिस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एक्टिविटी 2 to transport number of hydrogen chloride activity 1. ठीक है, ये ओवरऑल चेंजेस है, ये ओवरऑल चेंजेस है. जैसे हमने कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ा कल, हमने ये बोला था कि पोटेंशियल चेंजेस जो है वो कहां से आता है, मास ट्रांसफर से, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. तो हम यहाँ पे कह सकता है कि हमारा जो है कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है कि T नेगेटिव मोल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिविटी 2 माइग्रेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट. ठीक है, आप इसको ध्यान में देखो, T माइनस मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिविटी 2 माइग्रेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओवरऑल चेंजेस जो हैं, क्योंकि ये जो है राइट में है एक्टिविटी 2 और लेफ्ट की तरफ मूव किया है, ये ओवरऑल चेंजेस आपके मास ट्रांसफर जो है, ये कह सकता है कि जो पोटेंशियल जनरेट जो हो रहा है, पोटेंशियल चेंजेस जो आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है और क्यों आ रहा है, इज बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ और अ ट्रांसफर ऑफ द T नेगेटिव मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड to move from the right hand side to left hand side. Are you getting my point? यही लॉजिक है इसका. तो मास ट्रांसफर कहां से कहां हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है. मास ट्रांसफर हुआ है राइट से लेफ्ट में. यस, somebody चेट चेक करूं. हाँ, क्लियर है, ओके गुड. नाउ अब जो है, अब इस चेंजेस की अकॉर्डिंग हम उसकी पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, हाउ डू आई फाइंड आउट द पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड इज पोटेंशियल E cell is equals to
माइनस, क्योंकि स्टैंडर्ड ई तो जीरो हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो जीरो हो जाएगा, कल जैसे हमने बताया है कंसंट्रेशन सेल में। सो माइनस आर टी अपॉन एफ, इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है, 1 हुआ है, तो एफ ln एक्टिविटी 1 हाइड्रोजन आयन to the power of transport number T negative, activity 1 chlorine transport number negative upon activity 2 hydrogen ion transport number negative, activity 2 chlorine transport number of negative। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब नाउ दोनों सेम है, सो माइनस आर टी अपॉन एफ ln, आप दोनों देखो दोनों मल्टीप्लाइड है, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्टिविटी 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपॉन एक्टिविटी 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द पावर ऑफ ट्वाइस टी नेगेटिव। 2 कहां से आया है, क्योंकि दो एक्टिविटी मल्टीप्लाइड करने से आया है। ठीक है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट this minus 2 T नेगेटिव, क्योंकि लोग के बाहर RT अपॉन F ln एक्टिविटी 1 अपॉन एक्टिविटी 2। ठीक है, एक्टिविटी 1 अपॉन एक्टिविटी 2, ये प्लस माइनस भी लोग लिखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस भी एक्टिविटी हम लिख सकते हैं मिनी एक्टिविटी फॉर्म में भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब नाउ ये जो ई सेल है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, इसको हम ई डब्ल्यू टी लिखते हैं, दैट इज विद ट्रांसपोर्ट नंबर विद ट्रांसपेरेंट, दैट इज ई सेल, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। सो ई सेल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी नेगेटिव आर टी अपॉन एफ ln एक्टिविटी 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपॉन एक्टिविटी 1। मैंने इसको रिवर्स कर दिया, सो दैट माइनस को हमने पॉजिटिव में कर दिया, राइट। सो देयरफॉर हमारा जो यहाँ पे जो लिखा गया है कि ई डब्ल्यू टी इज नथिंग बट द पोटेंशियल विथ ट्रांसफरेंस, ओके, विथ ट्रांसपेरेंस की मीनिंग है। अब नाउ इसको 25 डिग्रीज में क्या होगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस आई कैन राइट ई डब्ल्यू टी और ई सेल इज इक्वल्स टू 2T नेगेटिव 0.0591 log एक्टिविटी 2 अपॉन एक्टिविटी 1। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे लिख लो और नहीं तो आप एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ ई पोटेंशियल विथ ट्रांसपेरेंट ऑलवेज बीन पॉजिटिव, 0 से ज्यादा होगा when A2 is greater than A1। A2 is greater than, मतलब क्या है, एक्टिविटी राहेन सर की एक्टिविटी जो है एज लॉन्ग एज एक्टिविटी जो है एक्टिविटी 1 से बड़ा है तो आपका ये जो सेल पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आएंगे। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप चेट में बताइए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आप लोग से कुछ पूछना चाह रहा हूं। आप लोग इस चीज को समझ में आ गया तो जरा बताइए, और किसी को कुछ डाउट है तो इमीडिएटली आप बताइए। मैं बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, कोई चिंता नहीं है, बट अभी जो है लेवल में सबको समझ में आ गया। मैं ये कह रहा हूं एक्टिविटी जो आपका A2 से A1 ज्यादा होगा
तो ये पॉजिटिव रहेंगे, ई सेल जो है, ई सेल EWT जो है और ई सेल जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। मान लो हमने A2 जो है A1 से कम ले लिया, तो वो आपका सिस्टम जो है उसका सेल जो है वो सेल पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा, A2 A1 से कम है। तो A1 से A2 ज़्यादा है तो आपका जो सेल पोटेंशियल जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। यस, नहीं समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देंगे। आप बताइए इमीडिएटली। आप somebody please raise your hand, somebody raise your hand and you can let me know, ठीक है। प्लीज, नहीं समझ में आया तो बताइए इमीडिएटली। ओके, सालू यू कैन स्पीक। यस सालू। सर ये जो आपने आयन ट्रांसफर बताया ना, एक बार ये जो इक्वेशंस बताई हैं ये नहीं एक बार समझ में आ रहा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब आयन ट्रांसफर बताया ना आपने, आयन एक्सचेंज हो रहा है जो। हाँ हाँ हाँ, ऊपर जो बताया है जी, ये जो इक्वेशंस बनाई ना फिर उससे वही नहीं समझ में आया कैसे बनाया नोट का फिर सजे ये जो ट्रांसफर बताए हैं, जी 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 ऊपर ये से। वाला कह रहे हो आप? हाँ जी इक्वेशन जो एनोड और कैथोड पे जो ये चेंजेस तो हो पता रहे है, हैं जी एनोड और कैथोड में। जी जी जो एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस हो रहे हैं फिर वो आपने सम करके बताया ना, वो नहीं आया इसमें। अच्छा देखो, ये जो चेंज है एनोड और चेंज इन कैथोड में, देखो एनोड में तो क्या होना है, एनोड में ऑक्सीडेशन होना है, कैथोड में क्या रिडक्शन होना है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हमने हाफ सेल पढ़ा है। हाफ सेल में क्या है, हाफ सेल में आपका ऑक्सीडेशन मतलब आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाफ ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयन बनता है। मगर ये देखो यहाँ एक्टिविटी 1 लिखा है, यहाँ एक्टिविटी 1 क्यों लिखा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है आपका इलेक्ट्रोड। देखो ऊपर इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में A1 है, तो यही A1 साइड में ही होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में A1 साइड, A2 में आपका राइट हैंड साइड में। तो सिमिलरली आपकी वही ऑब्जर्वेशन आपको करना है कि हाफ ऑफ द हाइड्रोजन गैस जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो एक हाइड्रोजन बनता है। वो हाइड्रोजन किस कंपार्टमेंट में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपार्टमेंट में रहेंगे, जो एनोड साइड कंपार्टमेंट में। तो एनोड का A1 इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो गया। उसके बाद कैथोड में क्या होगा, कैथोड में राइट हैंड साइड है, ऊपर देखो कैथोड जो है राइट हैंड साइड में है, ये वाला, ठीक है। मेरा माउस दिख रहा है, यहाँ है राइट हैंड साइड। तो यहाँ आपका एक्टिविटी 2 है, तो यहाँ पे रिडक्शन होना है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन लिया और रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया, गैस बन गया। तो ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जो इलेक्ट्रोड में रिएक्शंस हैं, ये तो हो गया आपका जो भी आपने अभी पढ़ा हो हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और जहां आप यूज करेंगे यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा है, वही रिएक्शन है। बट दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है एक कंपार्टमेंट A1 जो लिखा है वो एनोड साइड में है, A2 जो लिखा है वो कैथोड साइड में है। क्लियर? क्योंकि दोनों की एक्टिविटी अलग अलग है, इसलिए दोनों सेम नहीं ले सकता, नंबर 1। नंबर 2, हम क्योंकि दोनों सॉल्यूशन के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डॉटेड लाइन से सेपरेटेड है। ये जो डॉटेड लाइन जो है ना, यहाँ जो डॉटेड लाइन है ये सेपरेटेड है, ये सेपरेटेड लाइन जो है ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये सोल्ब्रिज नहीं डाला हुआ है, इसमें सोल्ब्रिज नहीं डाला हुआ है तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट इन द सेंस कि दोनों सॉल्यूशन जैसे ही मिक्स करते ही कहीं ना कहीं दोनों एक साइड से दूसरे साइड में मूव कर सकते हैं। तो जब आपका सॉल्यूशन मूव कर सकते हैं तो जैसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सॉल्यूशन एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकता है तो किस डायरेक्शन में जा सकता है, कैसे जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है,
हाइड्रोजन आयन जो है वो जनरली रिडक्शन कराते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है जनरली रिडक्शन करते हैं। तो वो किसकी तरफ जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में आ रहा है। तो ये क्योंकि हाइड्रोजन आयन डिफिशिएंट है, तो आप हाइड्रोजन जो है ये माइग्रेशन जब करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। तो कितना मूव करेगा इसकी ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंडेंट है। तो हमने क्या कंसिडर किया है, T पॉजिटिव इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो कितना मूव करेगा? T पॉजिटिव मोल ऑफ द हाइड्रोजन आयन विल मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक है। दूसरा ये है इलेक्ट्रोलाइट की मूव नंबर 1। नंबर टू जो हमारा क्लोरीन आयन भी है, क्लोरीन आयन कहां से कहां मूव करेंगे? क्लोरीन आयन जो है वो क्योंकि एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो सकता है, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आपका क्योंकि एक्सेस में है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो है नेगेटिव है, सो दे विल लाइक टू मूव फ्रॉम दी राइट टू लेफ्ट हैंड साइड। कैथोड साइड से एनोड साइड में मूव करने की कोशिश करेंगे। तो कितना मूव करेगा वो भी उसकी ट्रांसपोर्ट नंबर में डिपेंड करेंगे। सो T नेगेटिव, इसलिए मैंने यहां लिखा है T नेगेटिव मोल ऑफ द क्लोरीन एक्टिविटी 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगा। अब क्लियर हुआ? जी 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 जी। हाँ, तो जब आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड की चेंजेस भी पता चल गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता चल गया, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्योंकि करेंट वहां पे मूव करना है, करेंट जो है वो क्यों मूव होता है और कैसे मूव होता है? आयन की मोबिलिटी से। आयन की मोबिलिटी हमने बता दिया है कि भाई आपका केटायन जो है लेफ्ट से राइट में जाएगा, एनायन जो है राइट से लेफ्ट में जाएंगे। तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रोड में चेंजेस, इलेक्ट्रोलाइट में चेंजेस, वो सब एडिशन करेंगे। जब एडिशन किया तो कॉमन टर्म कैंसिल कर दो और जो बचा हुआ जो है उसको हम एडिशन करें। जितने भी लेफ्ट हैंड साइड की चेंजेस हैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, जितने भी राइट हैंड साइड की चेंजेस हैं वो राइट हैंड साइड में लिखें। जब आपने एक बार लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो A2 का 2 टर्म है, A1 का 1 टर्म है। राइट हैंड साइड में देखो A1 का 2 टर्म है, A2 का 1 टर्म है। तो हम इसको चेंजेस पता करने के लिए दोनों कॉमन जो एक्टिविटी 1 वाले एक साइड में, एक्टिविटी 2 वाले एक साइड में लिखो। तो हमने क्या किया है, एक्टिविटी 2 वाला जो एक टर्म है उसको लेफ्ट पे ला दिया है और एक्टिविटी 1 वाला है वो लेफ्ट से राइट में डाल दिया है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास क्या आया है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 2, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 2 और ओवरऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ नेगेटिव एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 1। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल ये हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट नंबर T नेगेटिव मोल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट एक्टिविटी 2, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है। तुम्हारा जो मास ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल में तो मास ट्रांसफर होगा या मैटर ट्रांसफर होगा एक साइड से दूसरे साइड में। तो ओवरऑल आपकी चेंजेस जो है वो ये है कि T नेगेटिव मोल ऑफ एक्टिविटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिविटी 2 माइग्रेट फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुआ है इसी वजह से आपकी सेल पोटेंशियल जो है डेवलप हुआ है। तो सेल पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ है, तो हम यहाँ पे नर्स इक्वेशन के थ्रू हमने ये लिख दिया है। ये प्रोडक्ट है एक्टिविटी 1 वाला, हमने ऊपर लिख दिया है, रिएक्टेंट आपका नीचे लिख दिया है। ठीक है, नीचे लिख दिया है क्योंकि स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है दोनों तो सेम है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और दोनों तरफ सेम है तो वो तो 0 हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म में जो आएगा एक्टिविटी वाला जो पोर्शन है जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला, वो 0 आ जाएगा। इसलिए हमने ये नेगेटिव से शुरू किया, नेगेटिव RT अपॉन F, क्योंकि देखो ये E इक्वल्स टू E0 RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना, ये नर्स इक्वेशन है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। अब ये जो E0 टर्म जो है वो कहाँ खत्म हो गया? E0 टर्म जो है क्योंकि E0 राइट माइनस E लेफ्ट, क्योंकि ये 0 0 है, हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन है 0 0 है ये।
क्योंकि हाइड्रोजन की जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो 0 0 होता है। तो ये 0 0 टर्म आ गया, तो 0 0 टर्म को हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास ये इतना। ठीक है, यही मैंने लिखा है, ये तो 0 टर्म हो गया, समझ में आया। तो ये टर्म 0 हो गया, तो आपका सिर्फ बचा हुआ टर्म ही आपने लिखना है। तो वही बचा हुआ टर्म हमने लिखा है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 1 दोनों मल्टीप्लाइड करेंगे तो ट्वाइस होगा। ट्वाइस होगा कि नहीं होगा? एक्टिविटी पॉजिटिव इनटू एक्टिविटी नेगेटिव बिकम्स एक्टिविटी ट्वाइस। आता ही नहीं आता प्लस माइनस करके। ठीक है, ये वही वाला है जो मैंने यहां लिखा है, ट्वाइस टी तो नेगेटिव जो लिखा है, क्योंकि उसकी स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक्टिविटी की कंट्रीब्यूशन है। नेगेटिव नीचे में भी है और दोनों ओवरऑल 2t है। 2t को मैंने लॉग के बाहर कर दिया, लॉग के बाहर आपका आ गया। अब उसके बाद हमारा ये क्वेश्चंस लिखा है फाइनली। ठीक है, और हमने ये लिखा है एक्टिविटी 2 अब लिख दिया, तो इसकी नेगेटिव वाला टर्म भी हट गया। क्लियर? अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर सालू सर, जी? क्लियर 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 सर। ओके, मोनिका जी आप पूछिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। मोनिका जी, यस मोनिका। सर मुझे पूछना था, आपने ना दोनों में वहाँ टी, हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, मोनिका, हेलो हाँ यस यस मोनिका, आवाज सुन रहे हैं, सर, बताइए। ये ऊपर ना दोनों में ना, यस सर, सर ये पावर में ना दोनों में टी माइनस लगा हुआ है, हम वहाँ एच पॉजिटिव के साथ पावर में टी पॉजिटिव भी लगा सकते हैं? कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट नंबर है जहाँ सर टी नेगेटिव एच पॉजिटिव के पावर में एक्टिविटी 1। यहाँ पे, यस सर, यहाँ सर। यहाँ क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव का ऑलरेडी है, इसलिए टी पॉजिटिव आप नहीं लिख सकते हैं। ओके सर। आप लिख सकता है किस फॉर्म में, जैसे आपका टी नेगेटिव जो है इक्वल्स टू 1 माइनस टी पॉजिटिव, तो यस सर। आपको कन्वर्ट करना है तो ये लिख सकता है। ठीक है, सपोज आपको लिखना ओके है सर। भाई टी नेगेटिव का वैल्यू, जैसे मेरे पास टी नेगेटिव दिया ही नहीं है, तो आप टी यस पॉजिटिव सर। की फॉर्म में लिख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। क्योंकि यहाँ पे हमारी बात जो जनरल इक्वेशन है मेरी, यहाँ मान लो कल को कैलकुलेशन आया, कैलकुलेशन में आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। फॉर्मूले में आपको लिखा है कि टी पॉजिटिव दिया हुआ है बट टी नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, तो आपको टी नेगेटिव की फॉर्म में लिख सकता है। जैसे मैं आपको फाइनली लिखता हूँ कि जैसे आप चाहे तो सपोज ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को आप समझो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं इसको डब्ल्यू टी क्योंकि विद ट्रांसपोर्ट नंबर है, तो इसको मैं 2 1 माइनस टी पॉजिटिव 0.0591 लॉ एक्टिविटी A2 अपॉन एक्टिविटी 1 बिल्कुल लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है मोनिका जी। हेलो, कहाँ गायब हो गए मोनिका, कहाँ रह गया? समझ में आ गया? ओके गुड, ठीक है। अब एनीवन? ओके, should I continue now? So now let me finish this particular point. So आगे हमने क्या करना है, आगे हमारे पास जो ई सेल है, जो हमारा EWT है, EWT जो है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलरेडी है, इसका मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो एडिशनल पोटेंशियल है, और मैंने आपको कल भी बताया कि ये एरर पोटेंशियल है, मतलब आपकी एक्यूरेट वाला वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट के साथ साथ कुछ सॉल्यूशन के अंदर जो एक पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो भी एडिशन हो गया। तो इसका मतलब आपके ओवरऑल सेल के अंदर आपका एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ गया है, उसको हटाना, रिमूव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सेल की एक्यूरेसी नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि दोनों सेल को हम सॉल्वरी से डिवाइड कर दें, मतलब सॉल्वरी से सेपरेट हो जाए। ठीक है, तब ये जो है इस सेल को हम
जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटा सकता है। सो इस पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक solution is separated by a Soul bridge। हम सोल ब्रिज से इसको सेपरेटेड कर दें, ठीक है। देन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैन बी eliminated। कैन बी eliminated, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हम उसको सेपरेट करेंगे, तो हम सेपरेट करके देखते हैं इसको दोनों को। सो लेट अस सी, हमारे जो इलेक्ट्रोड है हमने ये लिया है हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर। अब हमने क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड A1, इसको हमने सेपरेट कर दिया। नाउ सोल ब्रिज आ गया, दिस इज A2 हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो इस इलेक्ट्रोड के अंदर ये आपके पास ये जो डबल लाइन है ये है आपकी सोल ब्रिज, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन पहले था, अब मैंने डबल लाइन सोल ब्रिज डाल दिया। अब सोल ब्रिज आ गया तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो रह ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोड चेंजेस होंगे, ये ध्यान से सुनना। आप लोग को ये ध्यान से सुनना है, जैसे ही सोल ब्रिज आते ही आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, तो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस जो है अंदर नहीं होगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रोड रिएक्शन ही होंगे। तो आपके पास जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रोड चेंजेस होंगे, तो चेंज एट इलेक्ट्रोड ही होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में सॉल्यूशन नहीं है। तो हम पहला एनोड रिएक्शन में वही है, हाइड्रोजन जो है 1 एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, बी कैथोड हाफ ऑफ सॉरी ये हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 2 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा हाफ ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब नाउ इस सिस्टम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोड चेंजेस है, तो सेल रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन यही सेल रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पे भी कॉमन टर्म हटा दो, तो आपके पास ओवरऑल जो है क्या मिलेगा, हाफ ऑफ हाइड्रोजन एक्टिविटी 2 से एक्टिविटी 1 की तरफ मूव होगा। सो एक्टिविटी 2 से एक्टिविटी 1 की तरफ मूव होगा। तो ये जो सेल है, इस सेल जो है विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, तो आप यहां पे लिख सकता है दिस सेल इज विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इस चेंजेस से हम क्या कर सकते हैं, हमारे नर्स इक्वेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं EWOT, मतलब OT मतलब विदाउट, ठीक है, WOT मतलब विदाउट लिक्विड जंक्शन, विदाउट ट्रांसपेरेंट, इसको कहते हैं। इस इक्वल्स टू -RT/F, इलेक्ट्रॉन एक ही है तो F, ln प्रोडक्ट में क्या है, एक्टिविटी 1 हाइड्रोजन आयन एंड एक्टिविटी 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैन इवन राइट, क्योंकि जब हाइड्रोजन यहां से यहां मूव करते हैं, हम इसको जो है पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के अलावा हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं
माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपॉन एक्टिविटी 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नोटेशन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन की वहां पे चेंजेस है, बट हाइड्रोजन आयन ऑलवेज अकेला नहीं चेंज होता है, वो साथ में इसके एनायन होते हैं। बट पहले वाले में क्या था, ओवरऑल पूरा शिफ्ट था, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों नहीं डाला, स्क्वायर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लोरीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। बट नोटेशन में मैंने इसलिए लिखा है कि ये कॉमन हम ले पाए, ठीक है, इसलिए हमने क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लास्ट में लिखा है, सेम थिंग, ठीक है, सिर्फ नोटेशन की बात है। तो हम इसको EWOT इज इक्वल्स टू माइनस प्लस लिख देते हैं RT अपॉन F ln एक्टिविटी 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिविटी 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये लिखें, क्लियर। अब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि आपका WOT always greater than 0 when activity 2 is greater than activity 1, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होगा। दूसरा at 25 डिग्री सेल्सियस में आपका EWOT is equals to 0.0591 log activity 2 upon activity 1. This can also be written here. Now, अब हमारे पास एक विदाउट है, एक विथ है, तो मैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे निकालूं? हम निकाल सकते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम ELGP भी लिखते हैं, ठीक है। सो हम सबसे कर सकते हैं ELGP इज इक्वल्स टू EWT, विथ से विदाउट को माइनस कर दो तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा। तो इसमें हमने ट्वाइस T नेगेटिव RT अपॉन F ln A2 अपॉन A1 माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी 2 अपॉन एक्टिविटी 1, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं 2T नेगेटिव माइनस 1, कॉमन ले लिया RT अपॉन F ln A2 अपॉन A1, ठीक है। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव इक्वल्स टू 1 है ना। तो हम इसमें इस 1 वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। सो ELGP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T नेगेटिव, यहाँ माइनस T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास RT अपॉन F ln एक्टिविटी 2 अपॉन एक्टिविटी 1। अब देखो T ट्वाइस ऑफ T नेगेटिव है और माइनस T नेगेटिव है ना। तो हमारे पास कैंसिल हो सकता है क्या, कौन सा कैंसिल हो सकता है, हमारे पास T नेगेटिव कैंसिल हो सकता है, एक तो T नेगेटिव बचेगा माइनस T पॉजिटिव बचेंगे, RT अपॉन F। यही इक्वेशन है जो मैंने आपको ग्लास इलेक्ट्रोड में यूज किया था, T नेगेटिव माइनस T पॉजिटिव वाला इक्वेशन को लिखा था। ये है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो इसीलिए हमने बार बार मैंने क्या बोला था, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटाने के लिए क्यों पोटेशियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट वाला सॉल्ट क्यों लेता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्पीशीज में हमारा T पॉजिटिव और T नेगेटिव सेम होता है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल 0 हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा।
दूसरा यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं T नेगेटिव इज इक्वल्स टू 1 माइनस T पॉजिटिव के सेंस में आपको लेना है। तो आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस ट्वाइस ऑफ T पॉजिटिव RT अपॉन F ln A2 अपॉन A1। कल को लोग यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इससे इक्वल है, तब भी आप कहेंगे कि सही है, क्योंकि उस फॉर्मूले से हम इसको पुट कर सकते हैं, राइट। दूसरा, नाउ कंडीशन देखते हैं किसकी कंडीशन में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंस आता है। तो कंडीशन नंबर 1, जब T पॉजिटिव नेगेटिव जो है T पॉजिटिव से ज़्यादा होता है तो आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि WET जो है माइनस WOT जो है वो 0 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है पोटेंशियल जो है विद ट्रांसपोर्ट नंबर जो है विदाउट ट्रांसपोर्ट नंबर से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब इक्वेशंस आपको समझना है कल को कंडीशन नंबर 1 में। कंडीशन नंबर 2 में ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव जो है ट्रांसपोर्ट नंबर पॉजिटिव से लेस होता है, तो फिर आपका उसका मीनिंग है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है 0 से कम है, मतलब नेगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, सो इसका मतलब यही है कि EWT माइनस EWOT जो है लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, EWT जो है लेस होगा WOT से। ठीक है, ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए कौन किस कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द नेगेटिव इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ द पॉजिटिव, तब तुम्हारे पास आएगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका WT इक्वल्स टू WOT सेम होंगे। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं आपको समझना है। क्लियर नाउ? इज देयर एनी डाउट? यस, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यस, सीखा WOT का मीनिंग ये है कि आपकी जो है विदाउट ट्रांसपोर्ट है, विदाउट ट्रांसपेरेंट है, इसका मीनिंग। हाँ, आसिफ खान सर क्लास की बात अभी आगे मूव करिए। ओके, नो प्रॉब्लम, क्लास की बात पूछना है तो दिव्या क्लास की बात पूछिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अब ये नहीं समझ में आएगा तो दूसरा मैं पढ़ाऊंगा तो दूसरा जो है वो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको किसी को समझ में नहीं आया है तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लास आ गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड जो है रिवर्सिबल टू कैटायन वाला रिएक्शन जो है। तो यस, इफ somebody wants to say something, बताइए। आपको रिजल्ट्स देखो, पहले तो सब याद करना है, फिर बाद की फाइनल की इक्वेशंस आपको याद करनी है। ठीक है पंकज, फाइनल की इक्वेशन को आपने याद करनी है। ठीक, so let me go ahead so that I can finish up this, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट रिलेटेड है। बट नाउ
हमने दो टाइप बोला था, तो दूसरा टाइप की जो इलेक्ट्रोड है वो है रिवर्सिबल टू एनायन। तो कंसंट्रेशन सेल with transference transparent in which electrode is reversible to anion। ठीक है, एनायन की रिवर्सिबिलिटी आएंगे। तो इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो ये है कि सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड A1, पोटासियम क्लोराइड A2, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर। ओके, ये है। ओके, ये रिवर्सिबल जो कैटायन है। सो यहाँ पे भी वही चीज होगा कि आपका जो चेंजेस है, कैटायन जो राइट से लेफ्ट में जाएंगे, एनायन लेफ्ट से राइट में जाएगा। सेम प्रोसेस है, ओनली रिएक्शन यहाँ पे भी दोनों रिएक्शन होंगे, एक तो इलेक्ट्रो रिएक्शन होगा, दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस होंगे। सो नाउ इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, व्हेन 1 Faraday of electricity is withdrawn, the following changes, the following changes occurs। ठीक है, नंबर 1 the electrode changes, अब आपको पता है इलेक्ट्रोड चेंजेस में नंबर 1 एनोड में क्या होगा। एनोड में सिल्वर क्लोराइड के एनोड में रिएक्शन क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट एंड क्लोरीन, एक्वस। ठीक है, एक्वस में ये क्या होगा, A1, लेट मी जस्ट इरेज इट एंड डू करेक्शन, स्मॉल करेक्शन इज देयर। ओके, यहां आपका A, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो A1 से कहा जाएगा, ये जाएंगे सिल्वर क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। अब नाउ रिडक्शन कैथोड में होगा, क्योंकि ये जो है आपका, ये आपके पास ये जो है वो कैथोड है, ये आपके एनोड है। ठीक है, सो कैथोड में क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड get 1 electrons to convert into silver chloride ion activity 2, ओके, यही हो गया नंबर 1। नंबर 2, माइग्रेशन ऑफ आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट में जो हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ आयन। नाउ माइग्रेशन आयन में T पॉजिटिव, K पॉजिटिव, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 2 की तरफ जाएगा। एक्टिविटी 2 की तरफ मतलब लेफ्ट से राइट में, ये हो गया आपके पास। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोरीन 2 से लेके ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोरीन 81 की तरफ जाएगा।
सेम प्रोसेस है, जो हमने अभी जो लिखा है वो सेम प्रोसेस है। नाउ ओवरऑल चेंजेस क्या होगा, टोटल एडिशन करो, ठीक है, टोटल एडिशन किया, कॉमन टर्म कैंसिल करके, सो आपके पास जो है क्लोरीन एक्टिविटी 1, ट्रांसपोर्ट नंबर क्लोरीन एक्टिविटी 2 प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर के एक्टिविटी 1, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्लोरीन एक्टिविटी 2 प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर क्लोरीन एक्टिविटी 1 प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर पोटासियम एक्टिविटी 2। अब यहाँ पे भी सेम करो, कॉमन टर्म कंबाइन कर लो, क्लोरीन एक्टिविटी 1 माइनस टी नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 1 प्लस टी पॉजिटिव के पॉजिटिव एक्टिविटी 1। इधर साइड में क्लोरीन एक्टिविटी 1 माइनस टी नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 2, सॉरी ये 2 है, प्लस टी पॉजिटिव के पॉजिटिव एक्टिविटी 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी कॉमन ले सकता है, 1 माइनस टी पॉजिटिव, सॉरी टी नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 1 टी पॉजिटिव के पॉजिटिव एक्टिविटी 1, यहाँ भी 1 माइनस टी नेगेटिव क्लोरीन एक्टिविटी 2 टी पॉजिटिव के पॉजिटिव एक्टिविटी 2। अब यहाँ पे 1 माइनस टी नेगेटिव क्या है, टी पॉजिटिव, ठीक है। सेम प्रोसेस है जो हमने फर्स्ट में किया है, ओनली केटायन एनायन की फर्क है सिर्फ, क्योंकि ये एनायन रिवर्सिबिलिटी है इलेक्ट्रोड में। नाउ इसका मतलब क्या है, ये ओवरऑल टी पॉजिटिव मोल ऑफ पोटासियम क्लोराइड एक्टिविटी 1 मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पोटासियम क्लोराइड एक्टिविटी 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि टी पॉजिटिव मोल ऑफ पोटासियम क्लोराइड एट एक्टिविटी 1 मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि टोटल माइग्रेशन कहां से कहां हुआ है, टोटल माइग्रेशन हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, और कितना हुआ है, टी पॉजिटिव मोल हुआ है, क्लियर, टी पॉजिटिव मोल हुआ है। नाउ तो टी पॉजिटिव मोल हुआ इतना है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द नर्स इक्वेशन हम इसको ई सेल, और यू कैन से यहाँ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ही, सो टी डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन एक्टिविटी, यहाँ हम लिख सकता है, हम यहाँ लिख सकता है एक्टिविटी 2 K positive to the power of T positive into activity 2 chlorine negative T positive upon activity 1 K positive T positive into activity 1 negative T positive, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज हम ले सकते हैं स्क्वायर, सो आई कैन राइट माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन एक्टिविटी 2 टू द पावर ऑफ 2t पॉजिटिव अपॉन एक्टिविटी 1 टू द पावर ऑफ 2t पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 2t पॉजिटिव आर टी अपॉन एफ एल एन एक्टिविटी 2 अपॉन एक्टिविटी 1, हम इसको लिख सकते हैं। सो ई डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू प्लस 2t पॉजिटिव आर टी अपॉन एफ एल एन एक्टिविटी 1 अपॉन एक्टिविटी
2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव इसलिए लिखा है मैंने, और नहीं भी लिख सकते कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया है, activity 1 and activity 2। तो पॉजिटिव टर्म जो आया है तो इसी कारण से आया है। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, WT will be always greater than 0 when activity 1 is greater than activity 2। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हम एट 25 डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस में EWT is equals to 2T 0.0591 log activity 1 upon activity 2। ठीक है, ये हम आप इसमें लिख सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें कोई मेरी ख्याल से दिक्कत नहीं है। समटाइम पीपल ऑल्सो राइट, देखो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का पॉजिटिव होना चाहिए। 0.0591 लोग ए पॉजिटिव नेगेटिव लिखता है तब भी वही बात है, 1 पॉजिटिव नेगेटिव 1। ठीक है, 2 सेम है। मैंने एक्टिविटी में लिखा है क्योंकि एक्टिविटी हमने A1 एंड A2 लिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अगर मिन एक्टिविटी में भी लिखेंगे तो ऐसा लिख सकता है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाउ इसके अंदर सॉल्व ब्रिज है, सॉरी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, तो दोनों को देन हम विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बना सकता है। तो हमने सॉल्व ब्रिज डाल के दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, सो लेट अस अगेन डू separation of these two electrolyte। हमने इस पोटेशियम क्लोराइड एक्टिविटी 1 को हमने सेपरेट कर दिया सॉल्व ब्रिज डाल के, तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज हो गई। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज नाउ एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा चेंजेस, हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोड चेंजेस होंगे। सो हमारे पास जो चेंजेस होंगे वो एनोड का होगा एंड कैथोड को होंगे। तो एनोड का क्या है, एनोड का सिल्वर प्लस क्लोराइड आयन एक्टिविटी 1, तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड ऑक्सीडेशन एनोड में। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में रिडक्शन, तो सिल्वर सॉरी यहाँ एक्टिविटी 1 electrons to convert into silver plus chloride 1 activity 2। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब नाउ यहाँ पे भी सिमिलरली ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शन इज C1 एक्टिविटी 1 to C एक्टिविटी 2। माइग्रेशन क्या हुआ, माइग्रेशन A1 से A2 में माइग्रेट हुआ है, सो ये हो गया WOT माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी 2 क्लोरीन का माइनस एक्टिविटी 1 क्लोरीन का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस RT अपॉन F ln A2 पोटासियम क्लोराइड अपॉन A1 पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, सो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी 2 अपॉन एक्टिविटी 1। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन राइट। सो मेरा इसमें EWOT is equals to RT अपॉन F ln A1 अपॉन A2। ठीक है, अब नाउ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकाल दो। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू EWT माइनस EWOT। ठीक है, अब इसको हमने माइनस किया तो वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या था, ट्वाइस ऑफ T पॉजिटिव RT अपॉन F था, ln A1 अपॉन A2 था, माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी 1 अपॉन एक्टिविटी 2। ठीक है, सो कॉमन ले लिया आपने,
तो यू आर गेटिंग ट्वाइस ऑफ टी पॉजिटिव माइनस 1 RT अपॉन F ln A1 अपॉन A2। ठीक है, कॉमन की बात। अब नाउ यहाँ पे भी सेम चीज हम लागू करेंगे। 1 को हम क्या करेंगे, 1 को हम पुट करेंगे T पॉजिटिव माइनस T नेगेटिव। ठीक है, सो 1 इज T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव। ठीक है, 1 की वैल्यू हमने T में लिख दिया है। सो हमारे पास आएगा T पॉजिटिव माइनस T नेगेटिव RT अपॉन F ln A1 अपॉन A2। यही इक्वेशंस आपकी उसमें आएंगे, सॉरी। ठीक है, अब नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी हम कंडीशन लगाएं। नंबर 1, when T पॉजिटिव इज ग्रेटर देन T नेगेटिव। ठीक है, तो आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल will be greater than 0. So WT greater than 0, इसका मीनिंग है WT पोटेंशियल जो है OT से ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है, इसका मीनिंग है सेम। ठीक है, दूसरा हमारे पास दूसरा कंडीशन है कि when T negative is greater than T positive, so liquid junction potential is less than 0। ठीक है, इसका मतलब है WT less than WOT। और C में क्या है, when T positive is equals to T negative, negative, T positive is equals to T negative, तो क्या आएगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। इसीलिए हमने बार बार बोला है कि कोई भी कैटायन एनायन की वेलोसिटी और ट्रांसफर नंबर सेम होता है तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा या 0 होगा। ठीक है, दिस व्हाट वी कैन टॉक अबाउट। क्लियर? अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट टी। पहले आप लिख लो within 1 or 2 minutes and I'll show you what kind of the questions it comes for your exam point of view। मैथमेटिकल भी आता है और सिंपल इक्वेशन भी आता है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, राइट। बच्चे आप लोग की कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे। आई एम आंसरिंग ऑल ऑफ यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूं, उसके बाद आपका आंसर पूरा करूंगा। पेज नंबर 27 में और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये आपका नेट 2011 का है। इसमें लिखा गया है overall reaction for the passage of 1 Faradays of the charges in the following cell। उसमें लिखा गया है कि कहां से कहां माइग्रेशन हुआ है। तो आपकी आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है टी पॉजिटिव के आई सेल एक्टिविटी 1 से लेके वो टी पॉजिटिव के सेल 2 में गया है। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका ये होना चाहिए। क्लियर? दूसरा नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 12। ये यूजीसी नेट 2012 का है। क्वेश्चन नंबर 12 में इसके आंसर सी होंगे। ठीक है, वो भी हमने कंपोजिट रिएक्शन पढ़ा है। कंपोजिट रिएक्शन को देखिए, कल जो हमने पढ़ाया था उसका है। ठीक है,
ये कंपोजिट रिएक्शन का है। क्लियर? आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें न्यूमेरिकली इसमें आता है, ठीक है? इज इट ओके? एक और क्वेश्चंस लेते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस जो आप लोग का है। ये है गेट की 2011 का क्वेश्चन है। मैं आपका गेट का क्वेश्चंस नंबर भी कोशिश करता हूं बताने का। 2011 का गेट का क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है गिवन दैट कि आपका ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर इसमें, राइट? तो ये भी कंसंट्रेशन सेल के ही बारे में पूछा गया है, तो इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। आंसर क्या आएंगे? कैन समबडी टेल मी? यस, आंसर क्या आएगा इसका? मैं इसको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूं अपनी कॉन्सेप्ट में। आप अपने आप इसको मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.01 मोल पर डीएम